پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 3 آیت سے 8 آیت تک. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 آیت سے پڑھوں گا میں. لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. بولے ہاللیلویا. اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا اور پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش میں دکھائی دیا. نام کے پاک کلام کے پڑھے جانے سے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. تو آج کا کلام جو آپ سنیں گے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمیں پچھلے دنوں جمعرات کے دن آخری فسح کا دن منایا. یہودی اس دن فسح کے بڑے ذبح کر کے اپنی عید منا رہے تھے جمعرات کو. اور ادھر یسوع مسیح نے اپنا ہی بدن اپنا ہی خون اس فسح کی کھانے کے دوران شاگردوں کو دیا. کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے اور لو پیو یہ میرا لہو ہے. اور اس کے بعد جمعرات کی بات کر رہا ہوں تھرسڈے کی. اس کے بعد وہ گیتسمنی باغ میں چلے گئے. رات کا وقت تھا اور وہاں یسوع مسیح کو گرفتار کر دیا گیا. اور راتوں رات خدا یسوع مسیح کو مختلف کچہریوں میں عدالتوں میں گھسیٹا گیا. اب یہ کیسی عدالت ہے, کیسا قانون ہے جو رات کو عدالتیں لگی ہوئی ہے. یسوع مسیح کو اتنا ان کی نظر میں تو بہت بڑا مجرم تھا, لیکن جتنا بھی وہ سمجھے ان کی نظر میں جتنا تھا اس سے اتنا بھی نہیں تھا کہ رات کو عدالت کر جائے. خطرناک مجرموں کو وہ سلیب چڑھاتے تھے, لیکن یسوع ان کی نظر میں بے شک جتنا بھی صحیح, لیکن ان کے حساب سے بھی اتنا بڑا مجرم نہیں تھا. ان کے حساب سے پھر بھی رات کے وقت خیر جمعرات کی رات کو گرفتار کیا اور پھر ساری رات عدالتوں میں. اور جمعہ کا دن آ گیا گڈ فرائیڈے. ہم کہتے ہیں گڈ اچھا فرائیڈے. گڈ فرائیڈے کو یعنی جمعے کے دن یسوع مسیح کو صلیب دے دیا گیا. اور 12 بجے سے 3 بجے تک زیادہ تر چرچز میں یسوع مسیح کی صلیبی موت کے حوالے سے عبادت ہوتی ہے. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور 10ویں آیت, اور لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب, وہاں لکھا ہے کہ فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. وہ جی اٹھا ہے, وہ زندہ ہے اپنے وعدے کے مطابق. زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ جی اٹھا ہے. یہ اعلان کیا. یاد رہے بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کے زندہ ہونے کو ڈرامہ
करार देने की कोशिश की, झूठ साबित करने की कोशिश की और कहने लगे कि ये झूठ है। सबसे पहले रोमी हुकूमत, अब रोमी हुकूमत पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत थी, सिक्का चलता था रोम का। इतने वो कोई कच्चे गोलियां खेलने वाले नहीं थे, सिक्योरिटी सख्त थी, वो धोखा खा ही नहीं सकते। लेकिन रिश्वत दे के कहने लगे, जब कोई पूछे तो कह देगा कि यीशु के शागिर्द आए, रात को लाश, यीशु की लाश को चला के ले गए। इतनी सिक्योरिटी में, और पत्थर भी रोमी हुकूमत ने बहुत बड़ा पत्थर था जो उसके आगे, कब्र के आगे रख दिया था। ये कब्र एक कार थी, जमीन के नीचे नहीं थी, कार के आगे एक बड़ा पत्थर लुटा दिया गया। उसमें रोमी हुकूमत की मोहर आ गई। शागिर्द 12 शागिर्द तो सलीब तक नहीं पहुंचे, वो तो डरे हुए थे अपने घरों में। अब इतनी दलेरी कहां से आ गई उनमें कि वो रात को आए और चुरा के भेजे। रात को डरे हुए, सहमे हुए, मायूस शागिर्द कैसे ये कर सकते थे? और चुराने का फायदा भी क्या था? हमें लाश की क्या जरूरत है? अच्छी बड़ी तो कब्र थी, मज़ार बन जाता और दुनिया जाती मज़ार को देखती, जरूरत क्या थी लाश को चोरी करने की? कहते हैं रात को चोर ले गए। खैर वो तो मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे गलत साबित हुई उनकी ये बात। रोमी हुकूमत को मानना पड़ा कि हम लेकिन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ और लोग क्या कहते हैं। रोमी कहते हैं कि शागिर्द चुरा लेंगे, उन्हें क्या जरूरत थी लाश को चुराने की, और वो चुरा सकते भी नहीं थे। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर ले जाया गया, सलीब के पास, कलवरी पहाड़ के पास, लेकिन जब सलीब चढ़ाने लगे तो कोई हमशक्ल आ गया और उसको सलीब चढ़ा दिया और यीशु मसीह वहां से जिंदा आसमान में चला गया। अरे आप खुद अंदाजा लगाए। फिर वही पूरी हुकूमत की बात आ गई। पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाले इतने अहमक हो गए कि रात से रात हो रही है, 3 साल से किसी को देख लिए पहचानने में इनकार करते, और कोई और सलीब चढ़े, कोई और क्यों चढ़े? यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया था कि सलीब दूं, ताकि जान दूं, मुझे अपनी जान देना है। और यीशु के बदले में तो और कोई क्यों चढ़े? एक और ग्रुप है, पाकिस्तान में भी वो ग्रुप है, बाकी पूरी दुनिया में अब तो वो ग्रुप छा गया है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब के पास गया, कलवरी तक गया, जहां तक वो ठीक कहते हैं। फिर कहते हैं कि उसका कोई हमशक्ल आ गया, वो सलीब चढ़ गया, जहां तक भी वो दूसरी पार्टी के साथ पहुंच गया। लेकिन आगे पता क्या कहते हैं? वहां से यीशु चोरी छुपके, अब देखिए सिपाहियों के आंखों में धूल को नहीं कोई डाल सकता, वहां से चोरी छुपके वहां यीशु मसीह निकला और आके हिंदुस्तान कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आके रहने लगा और 63 साल की उम्र तक वहां रहा। 3 साल के अरसे में यीशु ने यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में इंतहार मचा दी, मुर्दे जिंदा किए, बीमारों को जिंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, ऐसी तालीम दी कि दुनिया दंग रह गई। और उसके बाद कई साल, 61 साल तक उम्र में खामोश, किसी को पता ही ना हो कि यहाँ पे कोई आया है। 61 साल तक रहे। अहमद है वो जो ये कहते हैं। भाइयों, यीशु मसीह की मौत को गलत साबित करने वाले झूठे साबित होते हैं। फिर यीशु जब जी उठा, अब आपको मैं सबूत दूंगा, तो किन किन को दिखाई दिया? अब आप पढ़ रहे थे, ये 5वें आयत में पहले कैफा को दिखाई दिया, सिर्फ पतरस ने, ये पौलुस ने इसके बारे में लिखा है, और उसके बाद 12 शागिर्दों को दिखाई दिया, और 12 शागिर्दों के बाद 500 से ज्यादा भाई इकट्ठे थे। अब ये हैरानकुन बात है, 500 लोग जमा करना, इसके बारे में हिस्ट्री कुछ नहीं कहती कि कैसे 500 लोगों का खुद से इकट्ठा हो गया। चंद औरतों ने तो देखा था पहले, यीशु के 12 शागिर्दों ने तो देखा है, और 500 से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच गई, इकट्ठे थे। भाई का मतलब है
जो उस वक्त मसीही को नहीं कहलाते थे, भाई कहलाते थे। आज लोग भाई विषय क्या मजाक बनाते थे, भाई कहा जाता था उस वक्त। तो 500 से ज्यादा भाइयों की जमात इकट्ठी थी और यीशु मसीह के दरमियान में आ गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किस को जुटलाते हो? पौलुस कहता है मैं उनमें से बहुतों को जानता हूं, वो 500 लोगों में से जिन्होंने यीशु को जिंदा देखा। और 500 के बाद वो कहते हैं साथ में आए। 500 के बाद लिखा है कि याकूब को दिखाई दिया। अब ये याकूब कौन है? 12 शागिर्दों में से तो नहीं है। याकूब कौन है? क्योंकि ऊपर से 12 शागिर्दों का लहदा से आया है, इसका लहदा से याकूब का। ये कौन है? ये यीशु मसीह का सगा भाई है, मुकद्दस मरियम की तरफ से, यूसुफ की तरफ से। आप ब्रदर कह सकते हैं, मुकद्दस मरियम की तरफ से ये सगा भाई है याकूब। और यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि यीशु के मरने तक ये ईमान नहीं लाए थे। ऐसे नहीं कि यीशु ने यूहन्ना को कह दिया देख तेरी मां ये है, और यूहन्ना को अपने घर मुकद्दस मरियम को ले गया, क्योंकि भाई ईमान नहीं लाते थे। लेकिन याकूब को यीशु मसीह खुद दिखाई दिया अपने भाई को। और याकूब सुन लीजिए, सगा भाई जो मुकद्दस मरियम की तरफ से था, मसीह यीशु हमारे मान ले आया। यीशु के आसमान में जाने के बाद नहीं, बल्कि यीशु मसीह जब जी उठा, जी उठने के बाद उसमें खुसूसन जाहिर हुआ, उसको दिखाया और कहा देख रहे मैं तुम्हारा मुकद्दस मरियम की तरफ से तुम्हारा हाफ ब्रदर हूँ, पहचानो मुझे, मैं वही हूँ जिस वक्त तुम्हें ईमान नहीं लाए थे। और याकूब यीशु मसीह पर ईमान ले आया। हालेलुया, सारे हालेलुया। और फिर मैं आपके सामने गवाह पेश कर रहा हूँ। अदालत में 2 गवाही काफी होती है। अदालत में किसी बात को साबित करने के लिए 2 या 3 गवाह काफी हैं, लेकिन गवाहों का ढेर है जिन्होंने कहा कि जी उठा है। सबसे बड़ा गवाह आज भी हमें नजर आता है, और भी बहुत से हैं, मैं आस्ते आस्ते बताऊंगा। खाली कब्र, यरूशलेम में गार्डन टूम के नाम से एक बागीचा है, बाग है, वहां ये बाग में बनाया है। वहां एक कब्र है जो हकीकी है, जो जिसमें यीशु दफन हुआ था। ये कब्र जमीन के अंदर नहीं खोदी गई थी, पहाड़ के अंदर गार है, और गार के अंदर यीशु मसीह की लाश को यूं रख दिया गया था, उसके ऊपर मट्टी नहीं डाली गई थी, आगे पत्थर में लुटा दिया गया था। वो गार, वो खाली कब्र पुकार पुकार कर कह रही है आओ दुनिया के लोगों, पास से आ जाओ, टूरिस्ट आ जाओ, दुनिया के लोग आ जाओ, देखो मुझमें कभी कोई कब्र हुआ था, आज मैं खाली हूँ। हालेलुया, आज भी कब्र खाली है। और हैरत है, लोग कब्रों में जाते हैं, वहां किसी का हड्डियां होती है, किसी का कुछ ना कुछ निशान बाकी है या ना भी हो, मसाल तो होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो टूरिस्ट देखने जाते हैं, पता किसको देखने जाते हैं? जहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन वहां है क्या? खाली कब्र। खाली कब्र कह रही है मुझमें कोई दफन हुआ था। और सुन लीजिए एक खास बात, यीशु मसीह यरूशलेम में दफन हुआ, ये सुनने वाली बात है। मैं खाली कब्र के हवाले से बात कर रहा हूं। यरूशलेम में अगर शागिर्द मिस्र में होते या किसी और मुल्क में होते, सलीब का वाकया यरूशलेम में होता, तो हम कहते कि वो वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, ये शागिर्द क्या कह रहे हैं कि यीशु जी था, इन्हें क्या बोलते हो, ये तो मिस्र में रहते हैं। उसी शहर, छोटे से शहर यरूशलेम में रहने वाले 40 दिन तक यीशु के साथ ट्रेनिंग करते रहे। ट्रेनिंग तो पहले 3 साल की हो चुकी थी शागिर्दों की। 40 दिन फ्रेशर कोर्स होता था, यीशु मसीह में हदायत देता रहा 40 दिन तक। और 40 दिन के बाद जब आसमान के ऊपर गया तो कितने दिन? 10 दिन के बाद रूह कुद्स नाज़िल हुआ। ये वाक़या जरा दोबारा सुनिए। हेलो, जरा तालियों चाहिए यीशु मसीह के लिए। अगर मुझे नींद नहीं आई तो आपको नहीं आनी चाहिए। यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करता रहा, दिखाई देता रहा, गुफ्तगू करता रहा, रिफ्रेशर कोर्स कराता रहा, कि वो 3 साल की ट्रेनिंग सारी यीशु मसीह रिवाइज कराता रहा। और सुन लीजिए, 40वें दिन यीशु मसीह जिंदा आसमान पे चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने शागिर्दों को कहा, क्या कहा? तुम जाओ यरूशलेम में
नाम में यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, तो 10 दिन तक वो ठहरे रहे। टोटल कितने दिन हो गए इसको जीवते? 40 और 10 50 दिन, 2 महीने नहीं हुए। यीशु को जी उठे भी 2 महीने नहीं हुए, यानी जिंदा होने के 40 दिन तक तो यीशु उनको दिखाई देता रहा। आसमान पे चला गया तो 10 दिन के बाद रुलकुस नाज़िल हुआ और शागिर्द 10वें दिन यीशु मसीह के आसमान पे जाने के। टोटल जिंदा होने के कितने दिन हैं जी? 50 दिन। जिंदा होने के कितने दिन बाद? 50 दिन। 2 महीने भी नहीं हुए। कब्र वही है, रोमी हुकूमत भी वही है, यहूदी जिन्होंने मारा, जिन्होंने कोड़े मारे वो भी वही है, सारे गवाह वहां हैं। तो रोमी हुकूमत खत्म नहीं हो गई और यहूदी भी वही है। पिलातुस भी अभी तक है, 2 महीने पिलातुस मार तो नहीं गया, हेरोदिस भी है, सब है। 2 महीने हुए तकरीबन 50वां दिन। पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, 11 शागिर्द साथ हैं। पतरस खड़ा हुआ कहने लगा, मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं ऐ यहूदियों, तुमने जिस यीशु को मसलूब किया वो हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन धरती का सीना चीरकर जी उठा। हालेलुया, वो जिंदा है। पतरस ने ऐलान कर दिया, शागिर्दों के साथ 50वां दिन था, चैलेंज कर दिया। चैलेंज करता हुआ कहा, तुम्हारे इसी शहर में कब्र है, जाकर देख लो, वो जिंदा है। कब्र की बात कर रहा था, खाली कब्र गवाह है। और शागिर्दों ने कब्र के बारे में कहा इसी शहर में है। ये मैं जो वाकया सुना रहा हूँ ये इमाल की किताब के दूसरे बाब की 29वीं आयत में है। इमाल चैप्टर 2 वर्स 29 अल्लाह लिखा है, इसी शहर में कब्र है, खाली जाके देख लो, यीशु जी उठा है, हम जिंदा यीशु के परस्तार हैं। गवाहों की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था बहुत से गवाह हैं। और फिर औरतों की गवाही, औरतों की गवाही। मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया और कहा जा जाके मेरे भाइयों को कह दे कि वो जी उठा है। आपने मूवी में भी देखा। तो औरतों की गवाही, औरतों की गवाही को उस जमाने में कोई इतना मुस्तैद नहीं समझा जाता था। औरतें इतनी दलेर भी नहीं होती थी, औरतें इतनी दलेर भी नहीं थी और इतनी उनकी गवाही को भी ठोस नहीं समझा जाता था यहूदी कल्चर के मुताबिक। और नाज़िक ज़र्फ़ है औरतें, आज भी नाज़िक ज़र्फ़ है, खुश होने वाले आज भी ख़वातीन नाज़िक ज़र्फ़ हैं, उस ज़माने में भी थी। मगर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, चारों मुसन्निफ़ीन जो हैं, मत्ती की इंजील का राइटर, मरकस की इंजील का राइटर, लूका की इंजील का राइटर और यूहन्ना की इंजील का लिखने वाला, चारों इस बात में मुत्फिक हैं कि औरतों ने हलचल मचा दी और जाके ऐलान कर दिया, आओ देखो, वो जो मसलूब हुआ था उसकी कब्र खाली है। औरतों की गवाही दलील का मसला है। पहले तो सब हाथ में थी, स्लीप पे तो सिर्फ स्लीप के पास सिर्फ 3 औरतें खड़ी थी, 3 औरतें खड़ी थी, मरियम मगदलीनी, ज़लोफिस की माँ और उसकी यूहन्ना की माँ सलोमी और यीशु मसीह की माँ मरियम। 3 औरतें थी, यार कभी ढेरों औरतें कहाँ से आ गई? बेशुमार औरतों ने मनाती की और कहा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग कहते हैं, बाइबल में उस आयत को समझते नहीं, कहते कि औरतों को चर्च में कलाम नहीं सुनाना चाहिए। और जिन चर्चिस में खवातीन को कहते हैं जी कलाम नहीं सुनाना चाहिए, उन चर्चिस में औरतें आपके सामने गीत गाती हैं, गवाही देती हैं। मुझे गवाही बताओ, गवाही कलाम नहीं है? अगर खवातीन आगे गवाही सुनाती हैं तो ये कलाम नहीं है, अपने बात से कुछ नहीं करती, खुदा का कलाम सुनाती हैं। बाइबल में खवातीन को मनादी करने से नहीं रोका गया। जिनको गलतफहमी है वो बाद में कभी बात कर रहे हैं। खवातीन ने डट के मनादी की, उनको बचाया और आज तक बेशुमार खवातीन मनादी कर रहे हैं। तो औरतों की गवाही। चौथी गवाही बहुत सी है, लेकिन एक और गवाही जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, याकूब की तब्दीली। याकूब की तब्दीली, यीशु का भाई, उसने यीशु को देखा और बदल गया। यीशु पैदा होने से लेकर 30 साल तक मुकद्दसा मरियम के साथ घर में रहा। याकूब भी साथ था, उसका भाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिंदा होने वाला मसीह जिंदगियां बदल देता है। जिंदा होने वाला मसीह जिंदगियां बदल देता है।
और उसको पौलुस कहता है कि मैं इस बात का गवाह हूं कि याकूब जो है उसको यीशु दिखा दिया। मेरा ख्याल है कि वो लिखता है, इमाल की किताब में पौलुस लिखता है, पहले ग्रंथियों में लिखता है, पहले ग्रंथियों के 15 बाब की में लिखता है कि याकूब को दिखाई दिया। मुझे ये लगता है कि पौलुस तब्दील होने के बाद, निजात पाने के बाद जब यरूशलेम में गया तो लिखा कि वहां कैफा के पास रहा, पतरस के पास रहा और याकूब से नहीं मिला। याकूब से, कौन सी याकूब से? यीशु के भाई से। तो उसके पास तो सारी चश्मदीद एली चश्मदीद जो गवाह है वो मौजूद थे। फिर एक और गवाही, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवाही, और है पौलुस की गवाही। कितने हैं पौलुस के बारे में जानते हैं? इसका पुराना नाम क्या था? साउल। साउल, जी हाँ, आप भी जानते हैं जी, मैं हाथ देख रहा हूं। तो साउल पुराना नाम था। जब यीशु मसीह आसमान पे चला गया, चीफ था, और शागिर्दों ने यरूशलेम में मनादी करनी शुरू की और सारे यरूशलेम में हलचल मचा दी। कब्र भी मौजूद थी खाली, और उन्होंने कहा यरूशलेम के रहने वालों, हम भी तो इसी शहर के वासी हैं, आओ देख लो खाली कब्र, तुमने तो मारा था और तुम्हारी कब्र, तुम्हारी हुकूमत अभी भी कायम है, तुम्हारे सरदार बहन फकीर और फरीसी अभी भी हैं, तुमने मुस्लिम किया, यीशु जिंदा है। और सुन लीजिए, यीशु के बारे में पौलुस की बात कर रहा हूं। उन दिनों में जब शागिर्द बड़े जोरों में मनादी कर रहे थे, पौलुस एक गुनहगार शख्स था, इसका नाम साउल था। और सुन लीजिए क्या हुआ, मैं बड़ी अच्छी गवाही आपको सामने पेश करूंगा, पौलुस की गवाही। साउल घर घर जाकर दरवाजे कुर्सियों के खटखटाता, और जैसे कोई मसीही बाहर आता उसके कहते जबान बंद रखो, आइंदा खबरदार, तब अगर तुमने कहा कि यीशु जी उठा है। फिर वो दूसरे घर में जाता, दरवाजा खटखटाता, कोई बाहर आता और कहता सुन लो, आइंदा इस बात का ऐलान ना करना कि यीशु जी उठा है, और अगर तुमने कहा जी उठा है किस बात कर लेंगे। और बहुत से लोग कहते थे करना है तो कर लो गिरफ्तार, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? उसकी कब्र खाली है, उस यीशु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मरा नहीं था, और वो कब्र में नहीं था, या वो जी उठा? कैसे? उसने कहा हम ऐलान करते रहेंगे कि यीशु जी उठा है। बोले हालेलुया। तो पौलुस जुल्म करता था, गिरफ्तार करके ले जाता था, हथकड़ियां लगवा के ले जाता था, फांसी करवाता था। और एक दिन क्या हुआ? साउल नाम है इसका। एक दिन क्या हुआ? जा रहा था दमिश्क के रास्ते से, दमिश्क की तरफ जा रहा था, सीधा एक स्ट्रीट है, गली है, उसमें से गुजर रहा था। और जब जा रहा था, आसमान से नूर चमका, आसमान से नूर चमका, उसकी आंखें चुंधिया गई और वो गिर गया। और जो ही गिरा, आसमान से आवाज आई, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? कोई जी उठने वाला मसीह, रेज़रेक्टेड क्राइस्ट, जी उठने वाला मसीह साउल पर जाहिर हुआ। और साउल के मुंह से पता क्या निकला? ऐ खुदावंद, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने आए खुदावंद कह दिया, यीशु को आए खुदावंद कह दिया। तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। आलिया मुझे यीशु के लिए शाहिद हुआ। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, आज भी ईरान में, मिस्र में, सऊदी अरब में, नाइजीरिया में बहुत से लोगों को यीशु मसीह खुद इसी तरह से मिला है। मैंने वीडियोस देखी है उनकी, और ऐसी अवेलेबल है कि यीशु आज भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन किनको? जिनके पास बाइबल नहीं है, जो बाइबल का यकीन नहीं करते, और वह खुद जाहिर होकर कहता है किसके पीछे जा रहे हो? मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था, अब जिंदा रहूंगा। निजात चाहिए, मेरे कफारे को कबूल कर लो। जिंदगी चाहिए, गुनाहों की माफी चाहिए, मेरे कफारे पर ईमान ले आओ। तो पौलुस पर जाहिर हुआ और पौलुस की जिंदगी बदल गई। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जो कहते हैं बाइबल बदल गई, उनसे कहिए मुझे नहीं पता बदली कि नहीं, मैं इतना जानता हूं कि ये बाइबल जो है एक शख्स की बात बताती है जो मर गया था और जिंदा है। वो जिंदा होने वाले मसीह ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब बोले हालेलुया। तो पौलुस एक बेहतरीन गवाह, और सुन लीजिए इसकी गवाही।
ये मसीह की गवाही देते देते यीशु इसमें खुद जाहिर हुआ। आप पढ़ रहे थे कि आखिर में मुझ पे जाहिर हुआ, ये 8वीं आयत में वो कहता है सबसे आखिर में मुझ पर जाहिर हुआ जो बुरे दिनों की पैदाइश हुई, यानी कि मैं सबसे एंड में मसीह पर ईमान लाया, कलीसिया को दिखाया सताने वाला था, मुझ में यीशु मसीह जाहिर हुआ। कैसी गवाही सुनाई, और ऐसी गवाही सुनाई कि कलीसियाओं का उसने इंतहा कर दी कलीसियाएं कायम करने की। 3 मिशनरी सफर किए और जाकर मुफ्त इलाकों में कलीसियाएं कायम की, यूरोप में कलीसियाएं कायम की, एशिया कोचिक में कलीसियाएं कायम की, और फिर बाइबल मुकद्दस की 14 किताबें और नए टेस्टामेंट की उसने लिखी हैं। रोमियो से लेकर इब्रानियों तक 14 खतों का तहरीर करने वाला पौलुस रसूल गवाह है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। 12 शहीदों की गवाही, 12 के 12 शहीद हुए। अब आपके वो एसक्यूटी के बारे में, मैं एसक्यूटी की बात नहीं कर रहा, फिर भी 12 ही थे, आपको मालूम होगा। 11 रह गए थे। तो जब यीशु जीव था तो शागिर्दों ने कहा यार वो जो ईमानदार हमारे बीच में जिन्होंने यीशु की जीते जी तौबा कर ली, यानी यीशु को कबूल कर लिया था, हम में से एक बंदा चुन लो और ईमानदारों में से जो गवाह हो यीशु की तालीम का, यीशु के मरने का, यीशु के जीवने का। यूदा इस्करियोती की जगह उसको शागिर्द बना लो। लिहाजा मित्यास नाम है, मत्तिया भी नाम कहते हैं उसे उन्होंने 12वां शागिर्द बना लिया। 12 के 12 शागिर्दों में से 11 शागिर्द यीशु मसीह के नाम के लिए शहीद हो गए। ये बलादी करते करते कि यीशु हुआ था, दफन हुआ था और जिंदा है, हम जिंदा खुदा की प्रशंसा करते हैं। 11 शागिर्द शहीद हो गए। आप कहेंगे 12 क्यों नहीं हुआ? यूहन्ना इंजील का राइटर जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, यूहन्ना के 3 सबूत लिखे, मुकाशवा लिखा जो मुकद्दस को अपने घर ले गया था, ये शहीद नहीं हुआ। इसे शहीद करने की कोशिशें की गई, इसे जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया गया, लेकिन वो जिंदा रहा। इसे जहर दिया गया, जिंदा रहा, क्योंकि वजह ये थी कि उसने आखिर में मुकाशवा की किताब लिखी थी। हालेलुया। वो जिंदा रहा और मुकाशवा की किताब के लिखने के बाद अपनी तबई मौत खुदा के पास चला गया। तो मैं कह रहा था शागिर्द गवाही देते देते मर गए। हमारे अपने हिंदुस्तान में तुमा रसूल आया और यही दफन हुआ, मुनादी करते करते यीशु की मुनादी करते। कुछ और दुआ है मेरे पास। हाँ जी, किसी के पास कोई और दुआ है? नहीं, मुखालिफ दुआ। कोई किसी के पास, आपके पास कोई दुआ है ऐसा जो कहते हैं नहीं यीशु नहीं जी उठा? कोई है? ले आओ, हम साबित करेंगे कि वो झूठे हैं। मैं उन दुआओं की बात करूंगा जो चश्मदीद दुआ है। आज ये आखिरी दुआ पेश कर रहा हूं। दुनिया में सन 2000 से शुरू करके यीशु के जी उठने से लेकर आज तक 2017 साल, यीशु के जी उठने से शुरू करके 2017 से लेकर 2000 से लेकर 2017 तक, तो इसका मतलब है 2017 साल तक बेशुमार लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दी। बेशुमार लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दी और उनमें से मैं बताऊंगा मशहूर नाम। शागिर्द आसमान में चले गए, शहीद हो गए। उसके बाद आज तक जो गवाही दे रहे हैं ये कौन है? ये वही है जिन्होंने सुनकर ईमान लाए। लिखा है मुबारक है वो जो बेदेखे बिन देखे ईमान लाए। बिन देखे ईमान लाने वालों की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है। हालेलुया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले वो हैं जो जिंदा यीशु को मानते हैं। देखा भी नहीं, सिर्फ बाइबल से पढ़ा और यकीन किया, बगैर देखे। मैं तो बगैर देखे ही मान ले आया। मैंने नहीं देखा कि मेरे सामने यीशु को कोड़े मारे गए। आपने देखा? मैंने नहीं देखा कि यीशु मसीह के दाढ़ी के बालों को नोचा गया, सर के बालों को नोचा गया, मुंह पे थूक थूका गया, कब्र में दफनाया गया। मैं इस बात का गवाह नहीं हूं, लेकिन इस बात का गवाह हूं कि यीशु जिंदा है, क्योंकि उसने मेरा जीवन बदल दिया है। तब से यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया और मेरी तरह एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों अधिकार है। मौजूदा दौर में मैं पीछे की चलता माजी में बड़े बड़े नाम है, मौजूदा दौर की बात कर लेता हूँ। रेनहार्ड बॉन्के एक मशहूर नाम, जर्मन है, अमेरिका में भी बहुत रहता है, लेकिन
اس نے افریقہ میں ہلچل مچا کے رکھ دی ہے، نائجیریا میں ہلچل مچا دی ہے، اور آپ حیران ہوں گے وہاں بچے کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی بھی ہوتی ہے، مسیحی بھی ہوتے ہیں، بچے کو یہ ریگان پونکی نے یہ کیا کہ وہ نائجیریا میں گیا اور وہاں جا کر کھلا پرچار کرنا شروع کر دیا، سب نے ہاللویا، وہاں مردے بھی زندہ ہوئے ہیں اور ابھی بھی مردے زندہ ہو رہے ہیں، لوگ اسی پر ایمان لے لا رہے ہیں۔ ڈینیل ایک نام ہے، ڈینیل ایک اور ہوا، یہودیوں میں سے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، ایک اور ہوا، اس نے یسوع کو مرتے تو نہیں دیکھا، سلیب ہوتے تو نہیں دیکھا، جی اٹھتے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی جب جیون اس کا بدل گیا ہے، زندہ مسیح نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ لاکھوں لوگ ٹیلی ویژن پہ اور اس کے کروسیڈز میں اس سے سنتے ہیں، لوگوں توبہ کر لو، نجات پا لو، اگر شفا چاہیے، اگر نجات پائی چاہیے، اگر گناہوں کی معافی چاہیے تو زندہ ہونے والے یسوع کو قبول کر لو۔ ہاللویا، اور اس کی گواہی سے بے شمار لوگ مسیح پر ایمان لا رہے ہیں۔ بڑے نام ہیں، بلی جو کا نام بڑا مشہور ہے، میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، اس کی کلیسیا میں لاکھوں کے حساب سے اس کی تعداد ہے، بڑا کام اس نے کیا۔ بلی گرہیم جو ابھی زندہ ہے، بزرگ ہے، ابھی وہ ویل چیئر پہ بیٹھے قرآن سناتا ہے، لاکھوں لوگوں تک انجیل کا پرچار اس نے کیا اور لوگوں سے کہا لوگوں یسوع مسیح کو زندہ ہونے والے یسوع کو قبول کر لو، کیونکہ زندہ ہونے والا یسوع مسیح قادر ہے، اس کی قدرت بے انتہا ہے، اس کی قدرت کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ سن لیجیے، یسوع نے پہلے کہہ دیا تھا ایمان کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہ جب روح القدس کا نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور آگے کیا لکھا ہے، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آج انتہا تک اس کے گواہ پھر رہے ہیں، گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن جی آئیے عبادت میں، سسٹر جی آئیے عبادت میں، بھائی جی آپ چرچ میں آئیے، آج خدا کا کلام سنیں، نجات کا پرچار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ ہاللویا، کاش کہ آپ اس کے گواہ بن کر نکلے میدان میں اور لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں۔ یسوع مسیح نے آسمان پہ جانے سے پہلے ایک ذمہ داری دی تھی آپ کو، مجھے بھی، ہم سب کو دی تھی، اور بہت سے لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ کیا تھی؟ متی کی انجیل 28واں باب 15ویں آیت سے شروع کریں، اور پھر مرکز کی انجیل 16واں باب 15ویں آیت سے شروع کر کے پڑھنا۔ ایک ذمہ داری دی تھی زندہ ہونے کے بعد، اور کہا تھا سنو ساری خلق میں جا کر، ساری زمین پر، تمام دنیا میں جا کے انجیل کا پرچار کرو اور کہو کہ یسوع زندہ ہے۔ ہاللویا، کہو کہ یسوع زندہ ہے۔ وہ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف گا رہے ہیں، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، یا واقعی سنا رہے ہیں؟ کیا ہم انجیل سنا رہے ہیں، صرف گا رہے ہیں؟ ہمیں انجیل سنانی ہے، خوشخبری سنانی ہے، زندہ یسوع کا پرچار کرنا ہے۔ بہت سے ایسٹر گزر گئے، بہت سے عید قیامت المسیح آپ نے منائی ہے، آج وعدہ کریں زندہ ہونے والے یسوع کی قدرت کو لے کر جائیں، نکلیں اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی قدرت کے وسیلہ سے موت سے کریں، بیماروں میں ہاتھ رکھیں، بیمار اچھے ہو جائیں گے، بزرگوں کو نکالیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ گنہگاروں کو آپ میں سے گھسیٹ کر مسیح کی بادشاہی میں لے آئیں۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ یہ پہلے وہ چلنے میں پیدا ہوا، پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اب وہ آسمان پہ ہے، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، زندہ ہونے والا مسیح آ رہا ہے، لیکن آنے سے پہلے آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے ہم گواہوں میں شامل ہو جائیں اور کہیں یسوع نے میرا جیون بدل دیا۔ ہاللویا۔